کوہاٹ ڈویژن بھر میں 150 سے زائد چھوٹے بڑے امام بارگاہوں میں مجالس سے اعضاء برپا کی جا رہی ہے۔ مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 1500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس وقت شہر کے مرکزی امام بارگاہ میں ہمارے نمائندے ملک یاسین موجود ہیں۔ جی ملک۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت کوہاٹ امام بارگاہ مرزا غلام حسین کے باہر موجود ہوں، جہاں پر 150 مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں ضلع کوہاٹ، ہنگو اور اورکزئی شامل ہیں، اور یہاں پر 1500 پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مجالس منعقد کی جا رہی ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ منتظمین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام جو پورے ملک میں مجالس اور جلوسوں کا انعقاد ہے، ویسے ہی کوہاٹ میں بھی کوہاٹ ڈویژن میں تقریباً 150 امام بارگاہوں میں مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے پرامن طریقے سے، اور اس میں سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ہماری انتظامیہ کو بھی جاتا ہے، فوج کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اس وقت۔ اور علی علیہ السلام کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ مجالس کا انعقاد یہ درس کربلا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اہل بیت کی، ان کے بچوں کی، وہ ہمارے لیے دین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے، اور علماء کرام اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی بھی ان کی قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور اسی سلسلے میں آج مجلس کا انعقاد امام بارگاہوں کی کوہاٹ میں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر مشکل وقت میں ہماری آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے دن شروع ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ بنگش کے علاقے میں کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں 150 سے زیادہ امام بارگاہوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی 50-60 جگہ پر برآمد ہو رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ نے منتظمین کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ جی سرگودا میں یوم شہادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس امام بارگاہ 7 بلاک سے برآمد۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق بلاک نمبر 7 امام بارگاہ میں مجلس کی گئی، اور بعد از مجلس تابوت امام علی علیہ السلام سٹی روڈ پر لایا گیا، جہاں مومنین کرام نے زیارت کے ساتھ پرسہ پیش کیا اور ماتم اور زنجیر زنی کی چھنکار نے ایک بار پھر کربلا کی یاد تازہ کروا دی۔ کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے جہانیہ کا دورہ۔ کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب نے رمضان پیکج کے تحت رمضان بازاروں میں چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے مزید کمی کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق رمضان بازاروں میں کل فی کلو چینی اب 70 روپے فی کلو گرام کی قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ محکمہ خوراک گندم خریداری کا مقررہ ہدف جلد حاصل کرے اور گندم سمگل اور ذخیرہ کرنے والے ملک دشمن عناصر سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ چودھری نور الحسن تنویر ایم این اے کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ ریلی نکالی، جو کینچی موڑ سے شروع ہوئی اور فوارہ چوک میں ریلی کا اختتام ہوا۔ اب رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا۔ شمالی ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس کا مسئلہ عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ کسانوں کو اپنی زرعی اجناس مقامی منڈی تک لے جانے میں گھنٹوں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک حشمت آوان سے جانتے ہیں۔ جی حشمت، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ ویلکم بیک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک حشمت آوان، اور آج ہم موجود ہیں تحصیل لیاقت پور کے شمالی پھاٹک پہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شمالی پھاٹک جو ہے تحصیل لیاقت پور کے عوام کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ ناظرین، پہلے بھی میں یہاں پہ پروگرام کر چکا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 3 پروگرام کر چکا ہوں۔ ناظرین، میرے پروگرام کرنے پر اور یہاں کے صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی پروگرام کیے ہیں، لیکن یہ مین ایشو پہ ابھی تک جو ہے کوئی کام عمل درآمد نہیں ہوا۔ ناظرین، کام عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اس کا سچ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں لیاقت پور کا جو
मेन इशू है ये अंडर बाईपास का है। यहाँ पे काफ़ी ताखीर के साथ लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। कई कई घंटे फाटक बंद होने की वजह से लोग जो है यहाँ पे परेशान खड़े होते हैं। असल मेन इशू इसका ये है, लियाकतपुर के फंड तो दिए जाते हैं लेकिन वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। उसको जो है जो यहाँ के बासर लोग हैं, बाशख्सियत लोग हैं, उनकी जो फरमाइशों पे उनके घरों के काम किए जाते हैं, लेकिन मेन जो काम है लियाकतपुर की आवाम का, अंडर बाईपास का, वो नहीं किया जाता। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? चन्नीगढ़ से। चन्नीगढ़ से लेके आ रहे हैं। क्या मुतालबा है आपका? आपका गेट खुलेगा तो हम जाएंगे ना फिर। अच्छा, फाटक बंद है। दिन में कितनी देर बंद रहता है ये फाटक? ये दिन में 4-5 दफा बंद रहता है। 4-5 दफा बंद रहता है। बाबा जी भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गल दे रेलवे का ये हाल है, गड्डी अहमदपुर फाटक बंद। अच्छा, ये लागे गड्डी खानपुर पल के फाटक बंद। वाम इतने 2 घंटे खड़े रहने, ये हाल वाम का। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा इन्हां दा बंद कोई नहीं। गल सुन, अंदर बाईपास बनाया जाए। अंदर बनया जाए, जिथे बनेगा वाम तो सौख ना टपे। बिल्कुल इनका मुतालबा है कि अंडर बाईपास बनाया जाए। नाज़रीन आपको बताते चले कि यहाँ पे बेजुबान जानवर भी काफी देर से जो है यहाँ पे वजन लेकर खड़े हुए हैं। 2-2 घंटे से वो खुदा के लिए यहाँ के MNA साहब से अपील है, MPA साहब से अपील है, हुकूमत पंजाब से अपील है, इंसानों पर तो छोड़ें, हैवानों पर तो थोड़ा रहम किया जाए, बेजुबानों पर तो थोड़ा रहम किया जाए। जो मेन इशू है उसका वो हल नहीं हो रहा। जो फंड आ रहे हैं वो हड़प किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है लियाकतपुर की आवाम के साथ? हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोग्राम किए हैं। हर दफ़ा हमारी यही अपील है, लियाकतपुर के जो मेन इशू है उनको हल किया जाए। हालांकि देखा जाए यहाँ पे बच्चे स्कूल, जो कॉलेज है वो भी उस तरफ है, जो मेन मराकज़, हॉस्पिटल, अदालतें, थाने, सब जो मेन मराकज़ हैं फाटक के उस तरफ है। तो मेन इशू जो बन जाए, एमरजेंसी में जाना पड़े तो यहाँ पे 2-2 घंटे लोग यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, उनको ताखीर का सामना करना पड़ता है। मेन इशू अभी तक हल नहीं हो पाया। अच्छा, एक बात आपको नाज़रीन वाज़े करके बताता चलो, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये देखें कि बाइक जो है 3-3 4-4 लोग जो हैं उठाकर बाइक फाटक क्रॉस कर रहे हैं, बाइक को उठवाकर फाटक क्रॉस कर रहे हैं। ये जो है एक गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है अंडर बाईपास ना होने की वजह से। इस गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने की वजह से कई दफ़ा यहाँ पे जो है हादसा भी पेश आ चुके हैं। लिहाजा अगर वो ये मजबूर होकर वो ये जो है गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनकी असल वजूहत यही है कि मेन असल वजूहत यही है कि अंडर बाईपास का मसला हल किया जाए, ताकि अवाम गैर कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने से भी बच सके और यहाँ पे जो हादसा पेश आते हैं उनसे भी बचा जा सके। लिहाजा कुछ बात करने के लिए कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? ये भाई 2-2 3-3 घंटे नहीं खुलता। अच्छा, बहुत जलालत है, फिर बाड़े लंबी लगाई हुए हैं, लोग बहुत तंग है इधर, जलीलो ख्वार हैं। क्या आपका हुकूमत पंजाब से? हमारा मुतालबा ये है कि ये अंडरपास बनाया जाए इधर से, जो लोगों को सहूलत हो। लोग तो बहुत तंग है भाई, किसी के पास गुजरने का रास्ता नहीं है। जो कुछ आता है ये खा पी जाते हैं साहबान, लगाते हैं नहीं, तो क्या करे आवाम, कैसे किधर जाए? बिल्कुल सही करें नाज़रीन, ये जो आज सच सरेआम मंजर आम पर लाया जा रहा है, इसका अजाला तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं MNA साहब के खिलाफ भी बात कर रहा हूँ, MPA साहब के खिलाफ भी बात कर रहा हूँ, लेकिन हकाइक जो है वो मुझे मेरी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। लियाकतपुर के जो हकाइक हैं, इस सच का अजाला जो है मुझे करना पड़ेगा, इस सच का अजाला मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई इसका डर नहीं है, क्योंकि मेरे शहर के जो हकाइक हैं वो सबसे अहम है। मेरी जान से ज्यादा मेरे शहर के हकाइक अहम है। बात करने के लिए और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कितनी देर हो गई आपको? यहाँ तो भाई आधा घंटा पौना घंटा भी खड़ा होना पड़ता है। अभी ये ट्रेन क्रॉस हो गई है, दूसरी ट्रेन जो है वो अभी अहमदपुर घूम रही है, फाटक बंद है। फाटक बंद है। फाटक बंद है। मेन इशू इसका जो अंडर बाईपास का है वो बनाया जाए। कितनी दफा अंडर पास बनाया जाए, कई दफा बोला है आवाम को, आवाम ने तो यहाँ कोई भी सुनता नहीं है, न मैंने न MPA कोई
कोई बात इधर से सुनते इधर निकाल के चले जाते हैं कपड़े झाड़ के घर को। अपने गरीबां दा खर्चा पूरा इनका कहना है कि यहाँ पे एक बार नहीं 1000 बार जो है हम अपील कर चुके हैं। आपको वादे करके बताता चलूं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक बेजुबान जानवर है जो पीछे काफी देर से रास्ता दे दें। मौलाना साहब, आपका रिक्शा है, कितनी देर से खड़े हैं आप? भाई 1.5 घंटा 2 घंटे रुकना पड़ता है इधर। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं है, इधर से अंडरपास बन जाता है, हम गुजर जाए ना। हाँ। घंटा इधर से आता है, घंटा उधर लग जाता है। क्या मुतालबा है आपको? MNA साहब, MPA साहब, जी हम यही वज़ीर आला कहते साहब हैं देख रहे हैं। नीचे से बना दें, अंडरपास बना दें, रास्ता बना दें। इनका बार बार यही मुतालबा है कि मेन इशू जो है अंडर बाईपास का है, इसको तामीर किया जाए, इसका काम जारी किया जाए। सबसे पहले जो लियाकतपुर का मेन इशू है वो अंडर बाईपास का है। यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ताखीर का सामना करना पड़ता है, एमरजेंसी में जाने वाले लोगों को भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा खुदा के लिए लियाकतपुर की आवाम पे रहम किया जाए, जो मेन अंडर बाईपास का इशू है उसको हल किया जाए। ये देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक बेजुबान जानवर है, ये एक बेजुबान जानवर है और इसे बिल्कुल पसीने से भरा हुआ है। इसके ऊपर कितनी वजन लादा हुआ है। बात करने के लिए इसके जो मालिक हैं वो भी, आप एक मिनट इधर आए, आप आए, एक मिनट यहीं खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको? ये तकरीबन 20 मन है। 20 मन? हाँ 20 मन। 20 मन कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? तकरीबन 1 घंटा हो गया। खुदा के लिए इंसानों पर तो नहीं, जानवरों पर तो रहम किया। बेजुबान है, 20 मन वजन लेकर 2 घंटे इंतजार करते हैं। वो बेजुबान है, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? खुदा के लिए जो मेन इशू है उसको हल किया जाए। इंशाल्लाह जो है, जब तक लियाकतपुर की आवाम के लिए ये मेन इशू हल नहीं होता तब तक मैं अपने हकाइक को इंशाल्लाह ज़ाहिर करता रहूँगा, चाहे मुझे सच का अजाला करना पड़े, चाहे मुझे लियाकतपुर के हकाइक के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़े। MNA साहब के खिलाफ, MPA साहब के खिलाफ, हुकूमत पंजाब है जिनके खिलाफ अगर मुझे मेरे लियाकतपुर के हकाइक पूरे नहीं हुए तो इंशाल्लाह मैं ये जंग जारी रखूँगा। और इंशाल्लाह जब तक ये इशू पूरा नहीं होता तब तक मैं अपना इशू के लिए आवाज़ अपनी जारी रखूँगा। कैमरामैन टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या सूरत हाल है लियाकतपुर के हकाइक। मुल्क भर की तरह सूबा सिंध लाड़काना में भी आज 21 रमज़ान यौम शहादत इमाम अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौका पर आज लाड़काना में भी इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस 7 मजलिस से इज़ाफ़ी मुनक़्क़द की जाएगी। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौका पर जाडल शाह और इमाम बारगाह कच्ची, इमाम बारगाह चादरा, मासूमीन लाहौरी, महल्ला अमीरुल मोमिनीन इमाम बारगाह और मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम इमाम बारगाह में मजलिस इज़ा का एहतमाम किया गया है। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब के जॉइंट सेक्रेटरी आतिफ अली भट्टू, समाजी रहनुमा फरहान भट्टू के वालिद हाजी अल्लाह भट्टू की जानिब से अहलियान इलाका और दोस्त अहबाब के आज़ाज़ में बुरेवाला के गाँव चक नंबर 333 EB में पुरवकार इफ्तार इशाइया का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर तहरीक जवानान पाकिस्तान साहिवाल डिवीजन के ज़ेरे तमाम पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती था। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मुजम्मल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज तहरीक जवानान पाकिस्तान साहिवाल डिवीज़न के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान पाक फ़ौज जिंदाबाद की रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिवीज़नल सदर ज़फ़र इकबाल ने की। उनके साथ डिवीजनल ऑर्गेनाइजर समीउल्लाह आसफ, नायब सदर लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी फैसल नदीम, सिटी सदर उकाशा खालिद, ज़िलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काशिफ अल खैरी और सिटी सदर मारखोर विंग चौधरी अली जवेद, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अदनान, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मारखोर विंग शाहिद इकबाल, डिवीजनल सदर नदीम रहमानी, जैन शबीर और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। रैली गोरी चौक से शुरू हुई और मजदूर पुली पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाक फौज से रिश्ता क्या, ला इलाहा के नारे लगाए। जी बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत बल्दिया हाल में मुनक़दा तकरीब में आयरस वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर तमाम बराए प्रोग्राम रोज़गार स्कीम बराए मुस्तहिक ख़ातीन में सिलाई मशीनें 12 अदद और मुस्तहिक माजूर अफराद में 2 अदद व्हील चेयर तकसीम की गई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफ़र बुज़दार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम रफ़ाकत अतीक, सोशल वेलफेयर ऑफिसर आज़म हमीद भी मौजूद थे।
سرگودا میں غیرت کے نام پر ایک اور ہوا کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ سید ہند شیرازی کی رپورٹ کے مطابق اولڈ سول لائن میں بھائی نے بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ سعدیہ نورین نے کچھ عرصہ قبل گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی۔ مقتولہ کے بھائی نادر علی نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 22 سالہ سعدیہ نورین موقع پر دم توڑ گئی۔ بلا شبہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں بانٹنے اور بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ تراویح میں تکمیل قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے کے بارے میں دیکھتے ہیں منچن آباد سے احمد یار کوکر کی یہ رپورٹ۔ جی احمد یار کوکر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے جو کہ رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں بانٹتا ہوا اختتام کی طرف گامزن ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور تراویح کا پڑھنا بہت بڑی سعادت اور نصیب کی بات ہے۔ سٹی گرلز کالج کے ڈائریکٹر رفیع الرحمان بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لخت جگر حافظ وسیع الرحمان اور شیخ ابرار کے فرزند ارجمند حافظ ابرار احمد نے گزشتہ رات 21 رمضان کو تراویح پڑھاتے ہوئے اپنا قرآن مجید مکمل کر لیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک پروکار مگر سادہ محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء اکرام سمیت اساتذہ معززین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر جامعہ صادقیہ عباسیہ کے مدرس مفتی خالد محمود نے قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت اور فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کریں، روزانہ جتنی ہو سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 2 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 پاؤ اگر پڑھ سکتے ہیں تو باقاعدگی سے پڑھیں، آدھا پارا پڑھ سکتے ہیں تو باقاعدگی سے پڑھیں، 1 پارا جتنا فرصت ہو۔ لیکن قرآن مجید یہ ہمارے گھروں میں کھلا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو ہم تعویذ لینے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑا جو تعویذ عطا فرمایا وہ نماز ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جب ہم ان عملوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم عاملوں کے پاس جائیں گے اور وہاں ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوگا، وقت بھی خرچ ہوگا، عقیدہ بھی ہمارا خراب ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمد یار کوکر، TNN نیوز، منچن آباد۔ جعفر آباد کے سینئر صحافی جیو نیوز کے رپورٹر ہاشم بلوچ انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ ڈیرہ اللہ یار میں ادا کر دی گئی۔ وہ جگر کے عرصے میں مبتلا اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مزید دیکھتے ہیں جعفر آباد سے مصری بگٹی کی یہ رپورٹ۔ جعفر آباد کے سینئر صحافی جنگ اور جیو کے رپورٹر ہاشم بلوچ کی نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ ڈیرہ الایار میں ادا کر دی گئی، جس میں سابق صوبائی وزراء، سیاسی و سماجی رہنماؤں، سرکاری آفیسران، عام شہریوں اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صحافی ہاشم بلوچ کو آبائی قبرستان کرم شاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ واضح رہے کہ سینئر صحافی ہاشم بلوچ جگر کے عارضے میں مبتلا اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، جو گزشتہ روز 21 رمضان کو انتقال کر گئے، جس کی میت ایمبولینس کے ذریعے جعفر آباد لایا گیا۔ ہاشم بلوچ 2010 میں ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد کے صدر اور 2011 میں جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ سینئر صحافی ہاشم بلوچ کی وفات پر جعفر آباد کے صحافی برادری نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، TNN، جعفر آباد۔ ننکانہ صاحب میں بھی یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تابوت حضرت علی علیہ السلام ڈاکٹر قمر حسین کے گھر سے برآمد ہوا اور امام بارگاہ قصر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ڈاکٹر بشیر احمد مرحوم ڈاکٹر قمر حسین کے گھر مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں عزاداران حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد اور سید حسیب شاہ زمان موتیاں والا سرکار آف جھامرا شریف نے خصوصی شرکت کی۔ سرگودا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ۔ سید ہند شیرازی کی رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری ڈرائیور نے پورے سرگودا کو چونا لگا دیا۔ فی پیٹرول پمپ سے لاکھ روپیہ بھتہ لینے والے کو سرگودا میں دفتر سے لاہور پورٹ کرنے کے احکامات۔ ملزم لاکھ روپیہ لے کر تمام پیٹرول پمپس مافیا کو اجازت دیتا تھا کہ مشینوں میں گڑبڑ، پیٹرول کی مقدار میں مکسنگ سمیت جو مرضی کرو۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ نے پیٹرول پمپس اور دیگر کمرشل اداروں سے رشوت وصول کرنے پر محکمہ انڈسٹریز کے ڈرائیور افلاق حسین کو سرگودا سے فارغ کر کے لاہور رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز پرائس ویٹ مینجمنٹ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔
TNN न्यूज़ की खबर पर DPO मुजफ्फरगढ़ अलीपुर पहुंच गए, मकतूल के वरसा से मुलाकात की, वाक़े का जायजा लिया, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चीचावतनी मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी यौम शहादत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मसाजिद और घरों में खुसूसी महफिल का इनेकाद किया गया। चीचावतनी की सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ अहले सुन्नत नूरुल मसाजिद चीचावतनी में मुनक़्क़द की गई। लियाकतपुर में डीजल की किल्लत ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रैफिक का पहिया जाम हो चुका है, जबकि काश्तकारों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक हशमत आवान से। जी हशमत आवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर में, जहाँ पर डीज़ल की किल्लत ने किसानों के साथ साथ ड्राइवर हजरात जो यहाँ के ड्राइवर हजरात है, जो ट्रांसपोर्टर है, उनकी ज़िंदगी को भी अजीरन बना दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि PTI की हुकूमत में डीज़ल महंगा तो था, पेट्रोल महंगा तो था, लेकिन मिल रहा था। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितने दिनों से डीज़ल नहीं मिल रहा? ये 5-6 दिन से नहीं मिल रहा। अच्छा, आप काश्तकार करते हैं या आपकी कोई गाड़ी है? हमारी थ्रेशरिंग चल रही है, गंदम की कटाई हो रही है, थ्रेशरिंग खत्म हुई है, अभी अब बिजाई, कपास की बिजाई करनी है, डीजल मिल नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? हम परेशान हो गए, फसल नहीं बीजी जाएगी। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है, मेहरबानी करके हमें डीजल चाहिए। अच्छा, ये हुकूमत से मेहरबानी ये है कि रिक्वेस्ट है कि हमें डीजल चाहिए बस। जी, इनका मुतालबा है कि महंगा मिले या सस्ता मिले, डीज़ल तो हमें चाहिए, क्योंकि काश्त का टाइम जो है अभी जा रहा है। बर वक्त काश्त ना की गई तो किसानों को नुकसान पहुंचेगा। बात करने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ पेट्रोल पंप के ऑनर भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं किस वजह से डीज़ल बंद कर दिया गया है और आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डीज़ल क्यों नहीं मिल रहा? डीज़ल जो हमें यही बताया जा रहा है कि पीछे से महंगा है, वो परचेज़ नहीं कर रहे बाहर से। जो पाकिस्तान में PSO के पास था उसने सप्लाई दी है सबको, अब उनके पास भी ख़त्म होता जा रहा है, तो पीछे से आ नहीं रहा। हमें यही बताया जा रहा है कि पीछे से नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल, हमें भी नहीं दे रहे। पीछे से कंपनी मतलब बाहर से जो आता है, जिस तरह से भी आता है कंपनीज में, वो नहीं दे रही। सुनने में तो यही आ रहा है कि जब तक रेट नहीं बढ़ता, हमें तो यही सुनाया जा रहा है कि पीछे से कि जब तक रेट नहीं बढ़ेगा डीजल आम नहीं हो सकता। रेट कितना रेट बढ़ रहा है? खबर तो है 40 से 50 रुपए से ऊपर शायद बढ़े फी लीटर। नाज़रीन, ये देखें कि पुरानी हुकूमत का जो नया तोहफा है, 40 से 50 रुपए फ़ी लीटर के पीछे जो है डीज़ल जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो ये गरीब किसान किस तरीके से अपनी कपास काश्त करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट चलेगी? पहले तो 2 से 3 रुपए फ़र्क होता था, अब 40 से 50 रुपए फ़र्क हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है जो अभी आए हैं। डीज़ल बताएं, आप कब कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे से खड़े हैं। कितने दिन से डीजल? 12 दिन से मिल तो अबल तो मिल नहीं रहा, जो मिला ब्लैक में मिला है। तो कपास की फसल में क्या रेट पे मिल रहा है? 5-4 रुपए इजाफे के साथ। अच्छा जी, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। अब मिल रहा है? आप नहीं मिल रहा कपास की मुतालबा पुरानी हुकूमत से मुतालबा ये है कि महंगा मिले या सस्ता मिले, मिले तो सही, कपास की फसल जा रही है। जी बिल्कुल, इनका मुतालबा है महंगा मिले या सस्ता मिले, मिले तो सही। कपास की जो है बिजाई अभी शुरू होने वाली है, ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, तो लिहाजा का मुतालबा है कि महंगा मिले या सस्ता। सरगोदा थाना लक्सिया की हुदूद सयाल मोड़ से भारी तावान के लिए साजिद नामी नौजवान को अगवा कर लिया गया। सैयदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक अगवाकार बजरिया मोबाइल लवाहिकीन से 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। अगवाकारों की बार बार तावान की रकम न देने पर संगीन नताइज की धमकियाँ, लवाहिकीन का पुलिस से रब्ता भी काम न आया। थाना लक्सिया SHO की गफलत और लापरवाही हमारे भाई की जान ले लेगी, मुद्दई मुकदमा की एहतजाज की धमकी। कंदकोट टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर वली खान को टोल प्लाजा के मालिकान और सिक्योरिटी गार्ड ने तशद्दुद कर दिया। ट्रक ड्राइवर वली खान का कहना है कि हमने टोल अदा करते वक्त पैसे हाथ से नीचे गिरने से हमें बिला जवाज़ टोल प्लाजा मालिकान और सिक्योरिटी गार्ड ने तशद्दुद किया। तशद्दुद होने वाले ट्रक ड्राइवर ने अंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मज़ीद उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और NH से अपील की है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रोड नहीं खोलेंगे। फोटाबाद शहर और गिरदोनवा के पेट्रोल पंप्स पर डीजल नायाब हो गया, अवाम जलील ख़ार होने लगी। पेट्रोल पंप्स पर अवाम और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, अवाम की दुहाई। डीजल नायाब, अवाम रुल गए। कई पेट्रोल पंप मालिकान अपने मनपसंद लोगों को नवाजने लगे। रात गए, अवाम का पेट्रोल पंप पर रश लग गया।
चिश्तिया शहर और गिरदोनवा में डीजल की कमी का सामना। शहरी आटा, चीनी, खाद के बाद अब डीजल लेने के लिए लंबे कतारें में लग गए। डीजल के हुसूल के लिए पेट्रोल पंप पर रश बढ़ने लगा, जिसके बायस मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी। डीजल की कमी के बायस किसानों को कपास की काश्त करने में मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइलुर रहमान खाड़े की हिदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक सिक्योरिटी ऑर्डर का इजरा किया गया है। वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, बैरियर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और इबादत गाहों पर लेडीज़ पुलिस भी तैनात की गई है। एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड्स और पुलिस मोबाइल्स की पेट्रोलिंग की जा रही है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की मियां वाली आमर डिप्टी डायरेक्टर नेशनल असेंबली तनवीर हुसैन की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने कासिम सूरी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर डायरेक्टर तरक्की अदब मंसूर, मारूफ शायर सलीम और नज़ीर याद भी मौजूद थे। साबिक MNA मुस्लिम लीग नून गुमैर हयात खान रोखड़ी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन की चौधरी शाह नवाज रांझा, सदर मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के हमरा वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक गुमैर हयात खान रोखड़ी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के चौधरी शाह नवाज रांझा, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के हमरा वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात और उनको वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सदर खुदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलक अमीर अकबर कलियार और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नजीबुल्लाह खान न्याजी के एजाज़ में मकामी होटल में अफ्तार पार्टी। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक अफ्तार पार्टी मकामी होटल में हुई। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैजी मलिक ने कहा कि सदर नवीद आलम खान न्याजी की क़यादत में खुदिया चश्मा प्रेस क्लब में दीवार एहसास के नाम से मंसूब करना और गरीबों की मदद करने से अल्लाह पाक इसका अजर देता है। और आखिर पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। डोगा बुंगा और गिरदोनवा में पेट्रोल पंप पर डीजल की अदम दस्तयाबी। PSO के अलावा बाकी तमाम कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही। डीजल की अदम फराहमी की वजह से कपास की काश्त मुतासर होने का खतरा। आलमी मंडी के हिसाब तेल की कीमतें बरकरार की जाएँ। सब्सिडी पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी में मुश्किलात हैं। सब्सिडी की वजह से प्राइवेट कंपनी तेल फराहम नहीं कर रही। लियाकतपुर तहसील भर में अताइयों का राज बरकरार। अनपढ़ गैर तरबियत याफ्ता लोग नाम नहाद डॉक्टर बन बैठे। इंतजामिया की नाक के नीचे इंसानी जानों के वर्कशॉप खोलकर नित नए तजर्बात किए जा रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर तनख्वाह लेने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लियाकतपुर और गिरदोनवा तहसील भर में अताइयों ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर इंसानी जानों पर नित नए तजुर्बात करने की वर्कशॉपें खोल रखी है। ज़राई के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर लाखों रुपए तनख्वाह व दीगर मराहत लेने के बावजूद मंथलियां वसूल करके नाम नहाद डॉक्टर होने का लाइसेंस फराहम कर रखा है, जहां इंसानों के माशी नुकसान के साथ जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इन अताइयों ने नाम नहाद डॉक्टरों के बोर्ड भी अवेजा कर रखे हैं। लियाकतपुर हेड 42 87 बैंक, गुलशन फरीद, मेतला चौक, अल्लाबाद, अमीनाबाद, खान बेला, जानपुर, तरंडा, मोहम्मद पनाह, जिंदू पीर समेत दीगर इलाकों अताइयों के गढ़ बन चुके हैं, जहां हेपेटाइटिस, जिगर के गुर्दे और दीगर संगीन बीमारियों के तजुर्बात करके पैसे बटोरे जा रहे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ केयर और ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाइयां सिर्फ मंथलियां ना देने वालों तक महदूद रह गई है। शहरियों ने CO हेल्थ और महकमा हेल्थ केयर एंटी क्वेकरी ऑफिसर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज़, लियाकतपुर। जहानी और गिरदोनवा में पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी। डीजल की फराहमी बंद होने से काश्तकार और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के मालिकान परेशान। कपास की बिजाई भी मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। नसरुल्लाह सेल्वी की रिपोर्ट के मुताबिक जहानी और गिरदोनवा में पेट्रोल पंप पर डीजल की अदम दस्तयाबी। PSO के अलावा बाकी तमाम कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही। सरगोदा के नवाही इलाका चक नंबर 27 शिवाली में वाक़या कैनू के बाग से गुज़श्ता दिनों कमसन बच्चे की नाश बरामद हुई, जिसको नामालूम मुल्ज़मान ने ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फ़रार हो गए। इत्तला वक़ुआ मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिजवान अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, DSP सदर सर्कल और SHO थाना सदर भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गए।
अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में, जहां लियारी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी कश्ती चौक के करीब LPG गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी, जबकि ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद एदी इमदाद रज़ाकार जाए वक़ुआ पर मौजूद, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई।